Welcome, children. Children, this topic is in continuation with the previous topic that we have covered, and we are covering in the chapter called Reconstitution of Partnership, that is, admission of a partner. So, children, when a new partner is admitted to the firm, he needs to give some contribution. The question arises why he is giving such contribution. The next question is how such contribution is given, and thereafter how we do its recording and why such recording is necessary. तो बच्चों, इन सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक कि जब भी नया पार्टनर आएगा वो कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का करेगा. So children, when a new partner is admitted into the firm, he or she may contribute two things. First, children, capital, कैश में भी ला सकता है बच्चों, काइंड में भी ला सकता है. एंड ये जो कैपिटल का पैसा बच्चों आएगा, दिस इज जनरली केप्ट इन द बिजनेस इटसेल्फ. बिजनेस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ये और स्ट्रेंथन करेगा. देन चिल्ड्रन, द पार्टनर्स जो ऑलरेडी बिजनेस इतने ईयर्स से कर रहे थे, उन्होंने फर्म की रेप्यूटेशन क्रिएट की है. सो दे वॉन्ट that for such reputation the new partner should contribute some money, and such money should be given to those partners as compensation जिन्होंने बच्चों sacrifice किया है. तो children remember, क्यों हम उससे पैसा मंगवा रहे हैं? क्योंकि वो फर्म के राइट्स अक्वायर करेगा और ओल्ड पार्टनर्स ने जो इतने ईयर्स से फर्म की रेप्यूटेशन बनाई है वो उसको शेयर करेगा. So children, he'll be contributing two types of money. One is called as capital, which he can bring in cash or in kind, and second, the compensation जो नया पार्टनर sacrificing partners को देगा, because वो फर्म की reputation share कर रहा है. तो children, let us understand the accounting treatment of how we record the capital which is brought in by the partner. Children, the capital which the new partner brings can be brought in cash as well as it can be brought in kind also. तो बच्चों, अगर वो कैश में कैपिटल लेके आया तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, और ऑल्टरनेटिवली वी कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चिल्ड्रन, द रूल इज इफ यू राइट कैश इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, इफ यू राइट बैंक इट इज डेबिट द रिसीवर, पैसे बैंक में जाएंगे, एंड न्यू पार्टनर पर्सनल अकाउंट रूल विल बी अप्लाइड, क्रेडिट द गिवर. तो चिल्ड्रन, द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन टू यूज कैश एंड व्हेन टू यूज बैंक. बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट अवेलेबल है एंड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस नजर आ रहा है, तो आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए अपने जर्नल एंट्री में कैश यूज करेंगे. ऑल्टरनेटिवली इन बैलेंस शीट इफ यू सी बैंक, तो अप्लाइंग द सेम लॉजिक आप बैंक अकाउंट यूज करें. माइट बी पॉसिबल बैलेंस शीट में कैश इन हैंड and cash at bank both are given. Then children, you can use any one of them, but then too it is suggested to be on the safer side, use bank account, because transactions done through bank in real life business are considered to be more genuine. तो बच्चों याद रखिएगा, अगर कैश में कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है तो एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. देन चिल्ड्रन, इफ द कैपिटल मनी इज ब्रॉट इन काइंड एज वेल एज कैश, दोनों साथ में आ रहा है, सो व्हाटसोएवर थिंग्स द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन, debit what comes in and so called credit the giver, just like the journal entry for started business with multiple assets. तो children, if cash is coming in, debit what comes in, पैसा बैंक में जा रहा है तो debit the receiver. If the new partner who is admitted, वो अपने old business से stock लेके आ रहा है, stock in trade, debit what comes in, वो अपने पुराने debtors और bill receivable को भी लेके आ रहा है, that is जो पुराने business के debtors थे वो यहाँ पे आके पैसे देंगे. Again, debit the increase in asset. Same children with land and building and plant and machinery, debit the increase in asset. Similarly, children, the new partner may have some creditors, bills payable or obligations brought from his old business to this firm. तो अब बच्चों यहाँ पे creditors और bills payable की value increase होगी, credit the increase in liability is the rule applicable. And children, finally, the capital amount which the new partner is bringing, credit the giver. So children, remember, capital money could be brought in cash as well as in kind. So entries are very simple based on the simple golden rules of accounting as per traditional and modern approach. Next children, we talk about the compensation money जो new partners sacrificing partners को देगा, वो क्या बोला जाएगा बच्चों? उसे हम बोलते हैं share in firm's goodwill. I repeat children, share in firm's goodwill. फर्म की जो भी बच्चों टोटल गुडविल होगी
फॉर एग्जाम्पल फर्म्स गुडविल इज ₹5 लाख और न्यू पार्टनर का शेयर बच्चों 1/5 है, तो इससे बोला जाएगा कि तुम 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करो. यस, यू गॉट इट राइट. 5 लाख into 1/5. Children, I have framed a simple example for your understanding. X and Y were partners in a firm. Admit Z into partnership for 1/4 share in profits and goodwill of the firm is valued at 60,000. तो बच्चों फर्म की गुडविल 60,000 रुपीज हमने कैलकुलेट की एज पर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एंड कैपिटलाइजेशन, मल्टीपल मेथड्स. 60,000 बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर आया फर्म की रेप्यूटेशन का. एंड इफ द न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, naturally 1/4 of 60,000 रुपी would be 15,000. तो हम न्यू पार्टनर से बोलेंगे कि तुम कैपिटल के साथ ये 15,000 रुपीज भी कंट्रीब्यूट करोगे. Children, the amount of capital would be kept in the business only, but this 15,000 rupee will be distributed among those partners who happen to sacrifice. So children, I hope so this basic accounting of bringing capital is clear to everybody and how we calculate the share of goodwill that is brought in by new partner. So children, for your easy understanding of how to record so-called goodwill, I have drawn this flow chart. Children, this flow chart is quite easy to understand. The understanding starts from the point. Children, first and foremost, when you will get a question, you need to take a decision out of the two. Children, might be possible जो आपको बैलेंस शीट मिले उसमें गुडविल की वैल्यू अपीयर कर रही होगी. माइट बी पॉसिबल जो आपको बैलेंस शीट मिले उसमें गुडविल की वैल्यू अपीयर ना कर रही हो. तो बच्चों अगर बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू अपीयर कर रही है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इंस्ट्रक्शन है बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कि हमें इसको वहां से रिमूव कर देना है. व्हाई? चिल्ड्रन प्लीज लिसन टू द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. बच्चों अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया और आप उसकी रेप्यूटेशन, ब्रांड वैल्यू के लिए कुछ ज्यादा पैसा देते हो. फॉर एग्जाम्पल द बिजनेस इज वर्थ 1,000 करोड़ एंड वी पे 1100 करोड़ टू दैट बिजनेस. तो बच्चों ये जो 100 करोड़ हमने एक्स्ट्रा पे किया, दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट गुडविल. बच्चों ये गुडविल जो आप अक्वायर कर रहे हो, दिस कैन वैलिडली बी रिटन इन बैलेंस शीट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. बट हम जो पार्टनरशिप में बैलेंस शीट की असेट साइड में बच्चों गुडविल देखते हैं, ये वो गुडविल की वैल्यू होती है जो पार्टनर्स ने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एंड कैपिटलाइजेशन डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करके खुद रिकॉर्ड कर ली. एक फेक एसेट की तरह यू कैन से इट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड पार्टनर्स को अननेसेसरी एडवांटेज मिला था किसी जमाने में. तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बोलता है कि अगर हमने गुडविल खरीदी है, परचेज्ड गुडविल, वी कैन रिकॉर्ड इट. बट दिस इज सेल्फ जनरेटेड जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके फेक तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड की, ये अलाउड नहीं है. तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेज कि हमको इस वैल्यू को एज सून एज पॉसिबल रिमूव करना है. तो बच्चों हम राइट ऑफ कर देंगे इसको एंड जैसे राइट ऑफ करेंगे आपकी जो बच्चों अपीयर्स की कंडीशन थी वो कन्वर्ट होके बन जाती है गुडविल डज नॉट अपीयर. तो चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, या तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में बच्चों आपको गुडविल नजर आएगा और या तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल नजर नहीं आएगा. अगर नजर आ रहा है बच्चों तो कैसे नजर आ रहा है? इट इज एन अजम्पशन कि पार्टनर्स ने ईयर्स अगो कैलकुलेट की फर्म की गुडविल यूजिंग दीज मेथड्स कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एंड कैपिटलाइजेशन एंड गुडविल की वैल्यू क्रिएट करके अपनी कैपिटल को फिक्टिशियसली इंक्रीज किया. दिस इज अनड्यू अकाउंटिंग लॉजिक. तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेज कि एज सून एज पॉसिबल हम इसे राइट ऑफ करेंगे एंड राइट ऑफ करने के बाद the condition of goodwill exist gets transformed into the condition of goodwill not exist, that is does not appear. अब बच्चों गुडविल की वैल्यू आपको एनी हाउ बैलेंस शीट से गेट आउट करनी है. तो अगर बैलेंस शीट में बच्चों वो अपीयर कर ही नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है आपको राइटिंग ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है. बट इफ इट अपीयर्स, रिमेंबर चिल्ड्रन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू राइट इट ऑफ. जैसे ही बच्चों आप राइट ऑफ कर दोगे, अगर वो अपीयर कर रही है तो कंडीशन ट्रांसफॉर्म होके डज नॉट अपीयर की कंडीशन बन जाती है. तो चिल्ड्रन रियलिटी में आपको अकाउंटिंग डज नॉट अपीयर की ही करनी होती है. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, इफ इट अपीयर्स हम राइट ऑफ करेंगे और कंडीशन बनाएंगे नॉट अपीयर्स की, और अगर अपीयर नहीं कर रहा देन देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच.
सो चिल्ड्रन कंटिन्यूइंग फर्दर, इफ गुडविल अपीयर्स वी नो हम उसको राइट ऑफ करा देंगे, ट्रांसफॉर्म होके नॉट अपीयर्स की कंडीशन आ जाएगी। तो एनी हाउ बच्चों आपको नॉट अपीयर की कंडीशन से ही स्टार्ट करना है। सेकेंड डिसीजन बच्चों जो हमें लेना है, we'll see in the question that new partner brings his share of goodwill in cash or he is unable to bring his share of goodwill in cash। बच्चों इस चार्ट को बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। नेक्स्ट बच्चों हमें चेक करना है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा। चिल्ड्रन इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग, वील डू दिस थिंग लेटर ऑन। अभी हम बात करेंगे एट प्रेजेंट, इफ ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल देन व्हाट टू डू। अगेन बच्चों यहां पे दो चॉइसेस हैं, यू नीड टू सी टू इट कि वो प्राइवेटली लेके आ रहा है कि नहीं। ये वर्ड बच्चों प्राइवेटली आपको क्वेश्चन में लिख के मिलेगा, दैट द न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। तो बच्चों प्राइवेटली के केस में रिमेंबर आप कैपिटल लाने की वैलिड एंट्री करेंगे, बट फॉर ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे बच्चों। प्राइवेटली मींस इट इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक मनी एंड पार्टनर्स इसको छुपा रहे हैं। दो इट इज एन इलीगल अकाउंटिंग प्रैक्टिस, वी शुड रिकॉर्ड इट, बट मेनी अ टाइम्स थियोरेटिकली आपको एग्जाम में ये चीज टेस्ट होगी कि अंडर व्हाट कंडीशन गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज नेवर अकाउंटेबल। सो चिल्ड्रन योर आंसर वुड बी when it is contributed privately। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में वर्ड प्राइवेटली लिख के मिलेगा, इसका मतलब आपको गुडविल लाने की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, आप सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे फॉर कैपिटल ब्रॉट इन। देन चिल्ड्रन इफ द वर्ड प्राइवेटली इज नॉट मेंशन्ड इट मींस गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड थ्रू द बुक्स। Here children you need to perform 3-step accounting. First, for bringing the capital and share of goodwill money, then children will distribute this share of goodwill money among the partners who sacrifice, and if the question says that the partners have withdrawn this goodwill money, in that case children आप withdrawal की entry करेंगे, else not। Children this method is known as premium method। तो चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आप देखोगे कि गुडविल अपीयर कर रहा है या नॉट अपीयर। इफ इट अपीयर्स आप बच्चों राइट ऑफ कर लोगे, कंडीशन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अपीयर्स इनटू द कंडीशन ऑफ डज नॉट अपीयर। देयर आफ्टर चिल्ड्रन इफ द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेट इट बी, अभी आप छोड़ दो इसको। व्हेन ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड प्राइवेटली इज मेंशन्ड और नॉट। If the word privately is given children, we won't be doing any recording for share of goodwill. If the word privately is not given children, it is considered to be brought in through the books. So children, first entry we'll be doing for bringing his share of capital and goodwill, then for distributing it among sacrificing partners, and if children withdrawal is mentioned, we'll do else not. Children, this method is known as premium method. So children, let's continue further with each and every method to be understood how to record it. But children, first and foremost I would like to put an emphasis on the concept how to check out that goodwill is appearing in the balance sheet on the asset side or not. So children, I have framed these two examples for explaining the concept. You can see the left panel, it says when goodwill appears on the asset side of balance sheet। बच्चों आपको यहाँ पे goodwill नजर आ रही है बैलेंस शीट में, and in the right side it is said when goodwill does not appear on the asset side of balance sheet। Children, nowhere in balance sheet you find goodwill। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो 40,000 गुडविल नजर आ रही है, हो सकता है कि हमने कोई बिजनेस कभी पहले खरीदा हो, उसकी रेप्यूटेशन की वैल्यू हमने खरीदी हो, ये गुडविल वहां से आई। बट बच्चों आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ते टाइम ये अजम्पशन नहीं लेना है। आपका अजम्पशन ये है कि ये गुडविल जो यहाँ पे 40,000 रुपीज आ रही है, it has been written by calculating as per the different methods that we have studied earlier, average profit, super profit, weighted capitalization and all that। तो बच्चों ये गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली लिखना गलत है यहाँ पे। In that case, such amount appearing on the asset side of balance sheet shall be written off. Written off means children removed as per the provisions of accounting standard 26 which doesn't allow this। तो बच्चों अलाउड ही नहीं है गुडविल को लिखना। तो चिल्ड्रन आप क्या अकाउंटिंग परफॉर्म करोगे? अगेन इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। गुडविल अपीयरिंग ऑन द असेट साइड हैज डेबिट एस्पेक्ट, आप उसे खत्म करेंगे बच्चों क्रेडिट करके, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को बच्चों हम लोग डेबिट कर लेंगे।
तो चिल्ड्रन आई रिपीट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड. व्हाई? बिकॉज जब गुडविल ईयर्स अगो क्रिएट की होगी तो पार्टनर्स को ही अनड्यू एडवांटेजेस मिले होंगे, हमने इनको क्रेडिट किया होगा. तो बच्चों इनको हटाने के लिए हम डेबिट करेंगे वापस से. And children, goodwill appearing on the asset side has a debit aspect. For closing, we will simply credit it. So children, the journal entry will become old partners capital or current account depending upon fluctuating and fixed method what we follow to goodwill account, and thereafter children, the book value that is appearing on the asset side will be divided as per old profit sharing ratio. Now children, after writing off the book value of goodwill, it shall not exist anywhere in balance sheet. हमने satisfy कर दिया अपने accounting standard 26 के provisions को. So children, the condition of goodwill appears gets transformed into the condition of goodwill does not appear, and thereafter the following accounting procedure is done. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, goodwill appears से accounting start आप करते हैं, पहले उसको नॉट अपीयर कराना है, दैट इज खत्म कराना है, उसके बाद बच्चों बाकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस चिल्ड्रन, कि गुडविल का शेयर पार्टनर प्राइवेटली लाए या बुक्स में रिकॉर्ड करें, व्हाटसोएवर इट इज, अनटिल अनलेस बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल को जब तक हम रिमूव नहीं कर देते, हम गुडविल की अकाउंटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू परफॉर्म इज you need to write off the value of old goodwill that appears on the asset side of balance sheet. तो बच्चों सबसे पहला काम तो आपको राइट ऑफ करना है. यस, अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है. बट चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं मिलेगी. यू विल बी गेटिंग सर्टन स्मॉल क्वेश्चंस आल्सो जहां बैलेंस शीट नहीं बनी होती है. सो देयर चिल्ड्रन आपको एक स्टेटमेंट लिख के मिलेगा, गुडविल appears in the books at rupees so and so. इसका मतलब ये appears की कंडीशन है तो आप राइट ऑफ करेंगे. और अगर ऐसा स्टेटमेंट बच्चों नहीं मिला तो आपको राइट ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है. सो चिल्ड्रन, वी प्रोसीड विद द फर्स्ट केस विच सेज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. बच्चों कैश में वो शेयर लेके आया, दो बातें होंगी, ईदर इट इज पेड प्राइवेटली और इट इज पेड थ्रू द बुक्स. तो बच्चों प्राइवेटली के केस में यू हैव टू पास नो एंट्री फॉर ब्रिंगिंग द शेयर ऑफ गुडविल बिकॉज इट इज बीइंग पेड ऑफ प्राइवेटली. ऑफ द रिकॉर्ड्स है बच्चों, इट इज जस्ट लाइक ब्लैक मनी. आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों एंट्री पास करेंगे कैपिटल ब्रॉट इन की. सो चिल्ड्रन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन एज वेल. चिल्ड्रन, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Mohan into the firm, giving him 1/4 share of future profits. Mohan brings 2 lakh as capital and necessary share of goodwill. बच्चों फर्म की जो गुडविल है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, द सेंटेंस इज रिटन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80. कहीं पे बच्चों ये लिखा ही नहीं है कि गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है या नहीं कर रही. सो वील अज्यूम दैट गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन बैलेंस शीट. तो बच्चों हमें राइट ऑफ की भी जरूरत नहीं है. अब बच्चों 80,000 अगर फर्म की गुडविल है एंड द न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर, दैट इज पार्टनर्स, द न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड, हिज शेयर इज 1/4. तो चिल्ड्रन 1/4 ऑफ 80,000 इज 20,000. बट चिल्ड्रन वी हैव अ सेंटेंस रिटन, मोहन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली. सो चिल्ड्रन, एज पर दिस सेंटेंस आपको गुडविल की कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. तो चिल्ड्रन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनपीएसआर कैलकुलेट होगा, एसआर कैलकुलेट होगा, नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन बट देन टू वी हैव डन इट फॉर प्रैक्टिस पर्पस. देन चिल्ड्रन वील डू द एंट्री ओनली फॉर ब्रिंगिंग ऑफ कैपिटल एंड द एंट्री इज बैंक और कैश. यू कैन राइट टू डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. तो बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप बैंक वर्ड यूज करेंगे, अगर बैलेंस शीट बन के आती तो हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द केस व्हेन प्राइवेटली वर्ड इज मेंशन्ड. आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैपिटल लाने की एंट्री पास करनी है. चिल्ड्रन, जनरली दीज टाइप ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चंस आर नॉट टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन. आपको सिर्फ थ्योरी में पूछ सकते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज नेवर अकाउंटेड. सो योर आंसर इज व्हेन इट इज ब्रॉट प्राइवेटली. So children, this is the live question that we can solve in the live class as such. You can follow it for your purposes. Okay children, so I hope so privately concept gets clear.
So children, after finishing the concept of goodwill brought in privately, we move to the next concept when goodwill is brought in and it is recorded through the books. Yes children, you got it right, it is premium method. Let us refer for a minute our charting process as such. तो बच्चों चार्टिंग प्रोसेस में सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप अपीयर्स की कंडीशन को कन्वर्ट कराएंगे नॉट अपीयर में. देन इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्राइवेटली वर्ड इज नॉट मेंशन्ड, तो थ्रू द बुक्स की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे जहां पे 3 टियर सिस्टम है रिकॉर्डिंग का बच्चों. फर्स्ट फॉर ब्रिंगिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन. चिल्ड्रन इफ विड्रॉल इज मेंशन्ड वील डू द एंट्री, एल्स नॉट. So children, thereafter coming down further under premium method, what is the procedure? Children, under this method the entries shall be passed in the following manner. First and foremost children, we pass the entry for bringing of capital and share of goodwill, and the entry goes like this: cash oblique bank account debit, that is debit what comes in or debit the receiver. Two new partners capital, that is credit the giver, जो बच्चों ये capital लेके आया. To premium for goodwill. Children, remember premium for goodwill is a nominal account. Credit all incomes and gain is the rule जिसके accordingly आपने इसको create किया. तो बच्चों whatsoever is the capital money new partner is bringing, we'll credit it to his capital account. जो premium का money बच्चों ये लेके आया वो आप premium में लिख दोगे and total amount will go to cash or bank. Now children, ये जो premium का पैसा आया है, the next stage is it will be distributed among those partners जिन्होंने सैक्रिफाइस किया. इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को बच्चों हम लोग रिटेनिंग भी बोलते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये पैसा पार्टनर्स विदड्रॉ करके ले जाएं. सो चिल्ड्रन, द सेम प्रीमियम अकाउंट विच वाज क्रेडिटेड इन द फर्स्ट एंट्री, नाउ इट विल बी डेबिटेड बिकॉज वी नीड टू क्लोज इट, एंड अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड डिपेंडिंग अपॉन फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड रिस्पेक्टिवली. चिल्ड्रन, ये जो प्रीमियम का मनी पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे टेक दिस मनी टू देयर होम, रादर दे विल कीप इट इन द बिजनेस ओनली फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो बच्चों ये इनका सैक्रिफाइस है, एंड इन अकाउंटेंसी सैक्रिफाइस मीन्स क्रेडिट. So we can say that premium for goodwill is debited for the purpose of closing, and sacrificing partners capital or current account will be created because their sacrifice goes up. They are keeping their money into the business. Moving down children further, if such money is specifically mentioned that it has been withdrawn, then children partners कुछ भी withdraw करेंगे तो we definitely debit drawings account. फिर बच्चों ड्रॉइंग्स को क्योंकि कैपिटल में ही क्लोज करना है, सो हियर इट इज सजेस्टेड कि हम डायरेक्टली कैपिटल या करंट अकाउंट यूज कर लें. तो चिल्ड्रन एंट्री इज वेरी सिंपल, डेबिट द रिसीवर भी आप बोल सकते हो, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल भी बोल सकते हो. टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या बैंक से पैसा निकला तो क्रेडिट द गिवर. चिल्ड्रन, नॉट नेसेसरी दैट दे कैन विड्रॉ होल अमाउंट, हो सकता है वो पूरा विड्रॉ करें, हो सकता है वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें और कम पैसा विड्रॉ करें जितना मिला इन कंपैरिजन विद दैट. तो बच्चों व्हाट्सएवर प्रीमियम दे हैव गॉट, उसमें से जितना हमने विड्रॉ किया इन दिस थर्ड एंट्री वील पुट दिस. तो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट अगर प्राइवेटली वर्ड नहीं लिखा है तो आप फर्स्ट और सेकेंड एंट्री करेंगे, एंड इफ इट इज मेंशन्ड देन चिल्ड्रन आप इस थर्ड एंट्री को करेंगे, एल्स नॉट. Children, for your understanding, I have framed a question in the similar manner. Ram and Shyam are partners sharing profits and losses 3:2. Admit Mohan for 1/4 share. Mohan brings children 2 lakh as a capital and necessary share of goodwill. तो बच्चों goodwill की जो वैल्यू है फर्म की that is 80,000 रुपीज. मोहन का शेयर बच्चों 1/4 है. तो चिल्ड्रन 1/4 of 80,000 रुपी becomes 20,000. तो चिल्ड्रन 2 लाख ये कैपिटल लेके आएगा, 1/4 of 80,000 that is 20,000, he will be bringing 220 in all. तो children how to proceed further? बच्चों सबसे पहले first and foremost we will calculate what is called as NPSR. After NPSR children we will be calculating SR, क्योंकि बच्चों अगर sacrificing ratio नहीं होगा तो आप goodwill का premium money divide नहीं कर पाएंगे. And then children entries would be passed in the given sequence. The sequence children goes like this. First and foremost children we will be doing the entry of what is called as contribution. तो बच्चों सबसे पहली एंट्री होगी
जो मोहन कैपिटल एंड प्रीमियम लेके आया उसकी. डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा जा रहा है. क्रेडिट द गिवर टू मोहन्स कैपिटल. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 2 lakh children capital, 20,000, that is 1/4 of 80,000 is premium money. 220 happens to be the total amount. Then children, premium created in the previous entry shall be debited here, and this premium money of 20,000 will be divided among the sacrificing partners Ram and Shyam in their sacrificing ratio of 3:2. Children, remember, we are using this sacrificing ratio of 3:2 and not the old ratio mentioned in the question. बच्चों, केस 1 में always your old and sacrificing ratio remains same, but बाकी केसेस में ऐसा नहीं है. देन चिल्ड्रन, अगर विड्रॉल की बात की गई है तो आप विड्रॉल की एंट्री करेंगे. डेबिट द रिसीवर, दैट इज पार्टनर्स, बैंक से पैसा निकल रहा है. क्रेडिट द गिवर. आप बच्चों कैश भी लिख सकते हो, बट इट इज सजेस्टेड, इट इज बेटर टू राइट बैंक. तो बच्चों आप तब लिखेंगे इसको जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टेड होगा, एल्स नॉट. ओके चिल्ड्रन, बच्चों यहां पे हमको एक एंट्री नजर नहीं आ रही है, सबसे पहली, दैट इज जो हम गुडविल को बुक्स से रिमूव करते थे. इसलिए बच्चों नहीं नजर आ रही क्योंकि गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बैलेंस शीट में. तो चिल्ड्रन, आई हैव फ्रेम्ड सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू पीपल टू सॉल्व. बच्चों, लाइक वी हैव अ स्मॉल डिस्कशन टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. चिल्ड्रन, बाकी पार्ट तो क्वेश्चन में एकदम सेम है. A and B are partners, they admit C, C brings share of goodwill 1,000 and capital. But children, we have another sentence in the question that goodwill account appears in the books at rupees 20,000. बच्चों, goodwill 20,000 rupees से बुक्स में अपीयर कर रही है. तो बच्चों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इस 20,000 की गुडविल को राइट ऑफ करोगे, देन द एंट्री फॉर ब्रिंगिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी डन. But children, in this third question you can see there is no such sentence written. When children there is no such sentence is being mentioned in the question, तो आपको ऑब्वियस सी बात है राइटिंग ऑफ की एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों. बट बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको बता दी गई है दैट द पार्टनर्स हैव विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो बच्चों आप विड्रॉल की थर्ड एंट्री, दैट इज द एंट्री विच आई हैव सेड कि अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा तो हम करेंगे. यस चिल्ड्रन, दिस एंट्री वी आर रिक्वायर्ड टू डू. देन चिल्ड्रन, अगेन इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको नजर आ रहा है एक सेंटेंस लिखा हुआ, देयर बुक्स शोड गुडविल एट 20. तो बच्चों पहली एंट्री, सबसे पहली आप राइटिंग ऑफ की करेंगे. ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, रिमेंबर वी हैव डन इन द अपर पार्ट ऑफ द वीडियो. आई कैन टेक इट वंस अगेन यू पीपल टू दैट पॉइंट. दिस एंट्री चिल्ड्रन, तो बच्चों आपको सबसे पहले गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री करनी है इफ इट अपीयर्स इन द बुक्स. उसके बाद बच्चों आप किसी एंट्री पे हाथ लगाओगे. Then children, we have so called question number 5 to be done in the simple manner. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख के मिलेगा, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. चिल्ड्रन, ये सेंटेंस सिंपली आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि बुक्स में गुडविल जैसा कुछ भी नहीं है. तो बच्चों अगर ऐसा लिख के आ गया इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं भी लिखा तो ऑब्वियसली नहीं है. ओके चिल्ड्रन, आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट गेट्स क्लैरिफाइड चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, you can have a practice to these questions and get in touch if you have any doubt further. So children, it was quite simple to understand how to record when goodwill is brought by the partner and recorded through the books. So children, repeating the concept again for summarization purposes. First and foremost children, the entry for bringing capital money and premium money. Then children, for distribution, and if it is mentioned, we'll pass the entry for withdrawal children, else there is no need to pass the entry for withdrawal. Children, I explain you the rules as well. Cash, debit what comes in, bank, debit the receiver. Then children, new partners capital, credit the giver. Premium for goodwill, credit all incomes and gains. Then children, we'll close premium for goodwill account having no golden rule to this. Sacrificing partners बच्चों इसलिए क्रेडिट किया because they are keeping their money into the business, इनका कैपिटल बढ़ रहा है. Credit the increase in capital is the rule applied. Then बच्चों जब ये विड्रॉ करेंगे, it is debit the receiver और debit the decrease in capital and credit what goes out. कैश अगर लिखना है बच्चों आपको और बैंक अगर लिखना है तो credit the giver. बच्चों जितना एक्सटेंट विड्रॉन है आप उसी को लिखेंगे. अगर लिखा है होल विड्रॉन है तो आप पूरा प्रीमियम का अमाउंट लिख देंगे. So children, I hope so this concept of so-called premium method is also quite clear to all.
So children, if we move to the chart drawn earlier, what we see here is the condition is new partner many a times may happen is unable to bring his share of goodwill. वो बच्चों गुडविल का शेयर नहीं ला पाया. तो बच्चों यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड बाय नेम तो नहीं है, हम इसको यूटिलिटी के हिसाब से नेट इफेक्ट मेथड बोलते हैं. बच्चों, इफ एनी पर्सन इन द बिजनेस ईदर बी अ पार्टनर और एन आउटसाइडर इज अनेबल टू पे द ऑब्लिगेशन इमीडिएटली, तो बच्चों हम उसे रिलीफ नहीं देंगे किसी भी तरह का, बिकॉज इट्स बिजनेस. तो चिल्ड्रन हम उसको अपना डेटर बना लेंगे. चिल्ड्रन रिमेंबर, हम उस पार्टनर को भी अपना डेटर बनाएंगे जो शेयर ऑफ गुडविल नहीं दे पा रहा. सो चिल्ड्रन, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हम इसे डेटर बनाएंगे. Children, I would like to rewind the process a bit back. As I said at the very start, might be possible that goodwill appears in the books. So children, for satisfying accounting standard 26, हम इसे write off करेंगे. This transforms the condition into goodwill does not appear. अब बच्चों यहाँ पे दो बातें थी, that either the new partner brings, that we have already gone through, और द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग. तो बच्चों अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ पा रहा, तो व्हाट वील बी डूइंग, हम इसे किसी भी तरह का रिलीफ नहीं देंगे. हम सिर्फ इतना रिलीफ देंगे दैट टिल द मोमेंट ऑफ टाइम यू आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट, आप हमारे डेटर हो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हु आर सपोज टू गेट दिस मनी दे एक्ट एज क्रेडिटर्स. तो बच्चों हम लोग इसको नेट इफेक्ट मेथड बोलते हैं. So children, in this method we have a concept starting with case 2, like when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. तो बच्चों जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाया, तो आप बच्चों नेट इफेक्ट मेथड अप्लाई करोगे, वेयर इट इज सेड दैट द न्यू पार्टनर शैल बिकम द डेटर टू द फर्म. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में तो आप राइट ऑफ करोगे. देयर आफ्टर आप बच्चों पहली एंट्री कैपिटल लाने की करोगे, बिकॉज द मेथड इटसेल्फ सेज कि वो प्रीमियम का पैसा नहीं ला पाया. तो चिल्ड्रन वील हैव द एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल. और बच्चों अगर कैपिटल लाने का जिक्र भी क्वेश्चन में नहीं है तो फॉरगेट दिस एंट्री एज वेल. देन चिल्ड्रन, फॉर अनपेड शेयर ऑफ गुडविल क्रिएटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो बच्चों आप यहां पे न्यू पार्टनर को डेटर बनाओगे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बच्चों क्रेडिटर होंगे. बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिकॉज न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम उसे बच्चों डेटर बनाएंगे, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जिन्हें ये पैसा फ्यूचर में मिलना है, until unless they get this, ये फर्म के क्रेडिटर्स होंगे. चिल्ड्रन आई रिपीट, न्यू पार्टनर को आप डेटर बनाएंगे, बट माइंड इट, आप कैपिटल वर्ड बच्चों यूज नहीं करेंगे, आप न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करेंगे. यस, यू मे बी थिंकिंग सर फिक्स मेथड है क्या? नो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप कैपिटल लिखते हो बच्चों, तो अल्टीमेटली उसकी कैपिटल से आपने एक तरह से पैसा निकाल लिया, तो फिर अनपेड की कंडीशन ही आपने खत्म कर दी. तो इस कंडीशन को परसिस्ट कराना है, एग्जिस्ट कराना है, इसलिए आप उसकी कैपिटल में से जरा भी पैसा नहीं निकालेंगे, उसकी कैपिटल को जरा भी पेनलाइज नहीं करेंगे. यू विल मेक द न्यू पार्टनर अ डेटर टू द बिजनेस बाय डेबिटिंग हिज करंट अकाउंट. And until unless sacrificing partners get this money in future, आप उन्हें बच्चों फर्म का क्रेडिटर बनाएंगे. Yes, for the sacrificing partners, it is rightly said, if it is fluctuating method, we'll use capital, and in case of fixed method, we'll use current. The value will be, children, share of goodwill that is unpaid divided in sacrificing ratio. Children, for understanding purposes, the question has been framed. Ram and Shyam partners, 3:2 is the profit loss ratio. Admitted Mohan to give 1/4 in profit. Mohan brings 2 lakh as capital, but clearly children it is mentioned he is unable to bring his share of goodwill, and goodwill of the firm is valued at children 80,000. 1/4 of 80,000 is children 20,000 rupees. So children, first and foremost your duty is to calculate NPSR, followed by sacrificing ratio, then coming down to journal entry. So children, here the question is quite sweet and simple. We'll pass the first entry for bringing capital, that is 2 lakh, and then children we'll make Mohan the debtor by debiting his current account what is said, and sacrificing partners were Ram and Shyam. It will be created. So children remember,
यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट से पार्टनर को डेटर बनाना है. द न्यू पार्टनर हु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड राम एंड श्याम विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर्स जब तक इन्हें पैसा मिल नहीं जाता. देन चिल्ड्रन, आपको यहां पे नजर आ रहा होगा सर राइटिंग ऑफ की एंट्री कहां गई. बच्चों गुडविल पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बच्चों हम राइट ऑफ क्यों करेंगे. तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल यू अप्लाई premium method, and when he is unable to do so you apply what is called as a net effect method, where the new partner is a debtor, he is indebted to the firm till he is not contributing his share of goodwill to the business, and the sacrificing partners are the creditors जब तक उनको reality में पैसा मिल नहीं जाता. Okay children, तो applying going concern concept we pass this journal entry with the expectations कि future में हमारे पास पैसे आएंगे. So children, I hope so the concept of exist not exist gets clear. कैसे exist को not exist कराना है, appear को not appear कराना है, आप समझ गए बच्चों. If he brings, entry आपको पता है बच्चों. If he not brings, it is in front of you on the screen. So children, we have question for practice purposes. Children, the questions are same as we did the so-called in the previous section of the video. Children, here in the same questions the text has been mentioned that the new partner is unable to pay rupees as goodwill 1000 rupees. So बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री करोगे राइट ऑफ करने की, thereafter children capital brought in करने की, and the last entry for making the new partner debtor. Again children, here also it has been marked that is C is unable to contribute rupees 4000 as his share of goodwill. Then children, in this question also he represents his incapacity for contributing his share of goodwill. Then children, here also it is mentioned unable to bring his share of goodwill. So children, the questions are same. सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले बात देखनी है that if goodwill already appears, आप इसको राइट ऑफ करेंगे to satisfy accounting standard 26, and then children आप कैपिटल को लाने की एंट्री करोगे, and thereafter we'll make the new partner as debtor in all the cases because ये goodwill का पैसा नहीं ला पाया. तो children, I hope so the concept is quite clear to all. We'll be following the same in the live classes as well children. तो बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ गई. मैं एक बार चार्ट बच्चों फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं बिकॉज दिस चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समझ लीजिए बच्चों ये ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में. तो बच्चों सबसे पहला काम है चेक करना कि गुडविल अपीयर कर रही है या इट डज नॉट अपीयर. इफ इट अपीयर्स बच्चों हम राइट ऑफ कर देंगे. एज आई सेड हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है फेक गुडविल क्रिएट की है हमने बच्चों. पार्टनर्स को कभी एडवांटेज मिला था तो आज कैंसिल करना है इसको. देन आफ्टर राइटिंग ऑफ इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कंडीशन ऑफ नॉट अपीयर्स. देन चिल्ड्रन वी नीड टू सी दैट द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल. प्राइवेटली लिखा है तो ओनली एंट्री फॉर कैपिटल वुड बी डन, नॉट फॉर गुडविल. देन चिल्ड्रन थ्रू द बुक्स एंट्री फॉर ब्रिंगिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल इफ मेंशन्ड, प्रीमियम मेथड. एंड चिल्ड्रन इफ द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल आप बच्चों करेंगे नेट इफेक्ट मेथड. Yes children, you may be having a curiosity, सर ये लास्ट आपने कुछ डिस्कस नहीं किया. Children, we'll be discussing it in the upcoming videos as well. तो children always remember सबसे इंपॉर्टेंट चीज है goodwill appears and not appears. अपीयर कर रहा है बच्चों तो राइट ऑफ कर दीजिएगा याद से. उसके बाद ये नॉट अपीयर्स बनेगा एंड तब आप हंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों बैलेंस शीट से आपको गुडविल को रिमूव करना है. रिमेंबर दिस. उसके बाद ही कुछ अकाउंटिंग स्टार्ट होगी. ओके तो बच्चों प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बस आपको दो बातें याद रखनी है. वन इज प्रीमियम मेथड एंड अदर इज कॉल्ड एज नेट इफेक्ट मेथड. बिकॉज चिल्ड्रन प्राइवेटली में देर इज नो अकाउंटिंग नीडेड. तो इफ इट इज ब्रॉट इन प्रीमियम मेथड, नॉट ब्रॉट चिल्ड्रन इट इज नेट इफेक्ट मेथड. So children, I hope so the concept is quite clear. In the upcoming videos we'll be taking the remaining topics. Thank you children.